with us. So let's just take this session forward by first of all seeking the blessings of Lord Dhanvantri. I request Dr. Anusuya and Dr. Tripti for Dhanvantri Vandana. Om Namami Dhanvantarim Adidevam Surasure Vandita Pada Padmam Loke Jararu Bhayamrityunasham Dataramishan Vividhoshadina Dhanvantari Ramanatham Sarvarog Nivarakam Ayurvedo Pravaktaram Vande Piyushatayakam Sarve Jana Sukhino Bhavantu Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashit Dukh Bhag Bhave Om Shanti Shanti Shanti. Thank you so much, Dr. Anusuya and Dr. Tripti. Now taking this session forward, I would like to invite Professor Deepa Mishra ma'am, professor from BHU, for the formal welcome address. Good afternoon. Good afternoon, esteemed guests, respected members from Executive Committee of Vishwa Ayurveda Parishad, coordinators of this very program, welcome. It's truly an honor and a privilege to have each and every one of you here today. Welcome to Kulguru Sambhasha. As we embark on this new initiative, spearheaded by Vishwa Ayurveda Parishad, I am eagerly anticipating the transformative outcomes that will stem from the insight shared by these true visionaries, the Kulgurus. And one of the visionary is today's guest speaker, Professor Abhimanyu Kumar. Heartily welcome, sir. He is administrator, clinician, Balrog Visheshagya, and Gyan Guru. Professor Dr. Abhimanyu Kumar, former Vice Chancellor, DSSR Ayurveda University, Jodhpur, former Vice Chancellor, Uttarakhand Ayurveda University, Dehradun, Director General, CCARS, Director, All India Institute of Ayurveda, New Delhi. A warm welcome to you, sir. Thank you. It is a pleasure to have Executive Committee members of Vishwa Ayurveda Parishad, Professor Govind Shukla, sir, President, Professor Mahesh Vyas, sir, General Secretary, Professor Yogesh Chandra Mishra, sir, Organizing Secretary of Vishwa Ayurveda Parishad. Welcome, sir. I am delighted to extend a warm welcome to our advisors, Professor Sanjeev Ojha, sir, former Vice Chancellor, Gujarat Ayurveda University, Professor Abhijit Joshi, Honorable Vice Chancellor, Desh Bhagat University, Punjab, Professor P.K. Prajapati, Honorable Vice Chancellor, Dr. Sarvepalli, Rajasthan University. I welcome our Chief Organizers, Professor Baldev Dhiman, sir, former Vice Chancellor, Shri Krishna Ayurveda University, Dr. Tanmay Goswami, sir, former Vice Chancellor, Sanskriti University, and one of the faculty, Dr. Nidhi Sharma, All India Institute of Ayurveda, New Delhi. I welcome all the program coordinator of this program. And last but not the least, I welcome all the graceful listeners who have joined today's meeting. Welcome. Welcome one and all again. Thank you for gracing us with your presence. Thank you. Thank you, sir. Over to Nikita. Thank you. Thank you so much, ma'am.
Now I request Professor Yogesh Chandra Mishra sir, respected organizing secretary of Vishwa Ayurveda Parishad, to acquaint us all about Vishwa Ayurveda Parishad activities and initiatives as significant contributions to the global Ayurveda community. I would like to invite Yogesh Chandra Mishra sir, organizing secretary of Vishwa Ayurveda Parishad, to acquaint us all regarding the Vishwa Ayurveda Parishad activities and initiatives. Maybe due to some network glitch, Yogesh Chandra Mishra sir has left the meeting. So without wasting the time, let's move forward and with great pleasure, I would like to remind and accept that we are incredibly fortunate to have Professor Abhimanyu Kumar sir with us. Sir expertise and experience undoubtedly provide us with a fresh perspective and a wealth of knowledge, inspiring us to think critically and creatively about the challenges and opportunities that lie ahead. But before inviting sir for his insightful talk, may I request Dr. Gayatri Deshpande ma'am to share a few glimpses of sir achievements and impactful contributions with all of us. Ma'am, please. Thanks, Dr. Nikita. Myself, Dr. Gayatri Deshpande, Assistant Professor, Department of Sanskrit Sanhita, St. Govindji Rauji Ayurved College, Solapur, Maharashtra. I welcome you all in today's Kulguru Sambhasha. It's my great pleasure to introduce eminent personality in the field of Ayurveda, Professor Dr. Abhimanyu Kumar sir. He is former Vice Chancellor of Sarvapalli Radhakrishnan, Rajasthan Ayurveda University, Jodhpur, Vice Chancellor Uttarakhand Ayurveda University, Dehradun, former Director General CCRAS, Delhi, former Director of All India Institute of Ayurveda, New Delhi. He has a major role in handcrafting and nurturing this institute, that is All India Institute of New Delhi. Also, he is chairman of Center for Ayurveda Education, Innovation and Technology. He was also adjunct professor at IIT Jodhpur, Rajasthan. He has pursued MD and PhD degree in pediatrics. Along with this, one of his special achievements is MSc in Applied Psychology and Diploma in Yoga. He has more than 40 years vast experience in various capacities. He has authored 13 books and published more than 167 research papers in various scientific, national and international journals. He supervised more than 65 MD students and 10 PhD scholars. He is member of and expert in various national and international universities, institutes and organizations. He has completed one international collaborative research project and 3 others sponsored by Government of India. He has also completed 2 industry-based collaborative clinical research projects. He also involved in teaching and training of international scholars. He was nominated by Department of Ayush, Government of India as National Coordinator for Clinical Documentation in National Institutes. He is member of Steering Committee constituted by Planning Commission. He is member of editorial and advisory board of various prestigious national and international journals. He has worked as expert for designing curriculum of Ayurveda in various international universities. Sir has a great work and contribution in the field of Ayurveda. It's difficult task to elaborate it in stipulated time. So I have highlighted only special achievements. So today we all have a very eminent personality among us. I welcome you, sir, to guide us and bless us with your expert lecture. Thank you all and welcome you all. Over to Dr. Nikita. With great pleasure,
Abhimanyu sir, you are requested to please enlighten us all with your visionary deliberation. Thank you, Nikita. हमारे तो जबरो वाले हाल बोलिए निकिता नो दो All the Honorable Vice Chancellor आता जो काको in this meeting. बराबर I think some voice is there. Overlapping of voice is there. Okay, thank you. So all the Honorable Vice Chancellors present in this meeting, Chief Coordinator of this program, Dr. Tanmay ji, Professor Yogesh Chandra Misra ji, Professor Prajapati ji, Professor Joshi ji, Dr. Sanjeev Ojha, Professor Baldev ji, Professor Shukla ji, Professor Vyas ji, and Dr. Nidhi, and all the office bearer of Vishwa Ayurveda Parishad, 100 faculty members, and dear students. So I think before we start, first I would like to just have a view of our past, present and future. तो जब ये पूरी रेंज को आप देखना चाहते हैं ना कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, जस्ट टू नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, जो अच्छी चीज़ें थी उनको हम लेके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और जो कुछ कमियां रह गई थी उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो दिस आवर हिस्ट्री टेल्स, तो वो देखना ज़रूरी है. प्रेजेंट में हम किस लेवल पे हैं और फ्यूचर का हमारा क्या गोल है. तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑल द 3 टेंसेज हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा और मेजर रोल प्ले करते हैं. तो अगर हम देखें कि हमारे टोटल पिछले 100 सालों की जो स्थिति है खासतौर से आयुर्वेद को लेके, तो हम देखेंगे कि पिछले 50 साल पहले की स्थिति अगर देखें तो एक जस्ट लाइक ए फ्लैट कर्व की तरीके से आयुर्वेद का स्टेटस चल रहा था. बट पिछले 50 सालों में कर्व राइज होना शुरू हुआ, और ये अभी के जो पिछले 10 साल हैं, मैं कहना चाहूँगा कि इसमें ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर उठा है. और इसमें 2 महत्वपूर्ण जो हमारे माइलस्टोन रहे, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का बनना और गवर्नमेंट का हर लेवल पे आयुर्वेद को सपोर्ट करना. तो ये 2 जो माइलस्टोन्स थे ये बहुत बड़े थे, और ये एक तरीके से टर्निंग पॉइंट का इन्होंने काम किया. आज इस मौके पे मैं एक और शख्सियत को याद करना चाहूँगा. संभवतः जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने संभवतः नाम भी नहीं सुना होगा, श्री राजनारायण जी. राजनारायण जी 1977 और 78 में सेंट्रल में हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, और एक आयुर्वेद को अलग दिशा में ले जाने का मैं समझता हूँ कि फर्स्ट टाइम उन्होंने ही आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं उनके पे स्केल को इक्वल किया था. और जो बहुत सारे जो मॉडर्न मेडिसिन के सेटलमेंट्स हैं उनमें आयुर्वेद के डॉक्टर्स की पोस्टिंग को स्टार्ट किया था. तो दैट वाज वेरी स्टार्टिंग पॉइंट. तो मैं आज के दिन पे मैं उनको भी याद करना चाहूँगा, क्योंकि इस व्यक्ति विशेष का आयुर्वेद के ऊपर बहुत उपकार है इस सेंस में. आज की बात मैं कहना चाहूँगा तो उसमें मैं 4 बिंदुओं पर फोकस करना चाहूँगा. आयुर्वेदा एजुकेशन के ऊपर, जो हमारी क्लिनिकल सर्विसेज हैं, रिसर्च एस्पेक्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो जब हम आयुर्वेद एजुकेशन की बात करते
आयुर्वेदा एजुकेशन की जब बात करते हैं तो खास तौर से जो हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में हैं, तो मैं थोड़ी सी आपकी बीच बीच में जानकारी भी, जो पहले क्या होता था और अभी आप क्या देख रहे हैं, ज़रूर उसको फोकस करना चाहूँगा। हालांकि जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उनको ये सारी चीज़ें पहले से ही मालूम है। तो पहले जो अभी आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ हैं वो CCI में, बाकी समय तो ये एक समय में ऐसा कुछ नहीं था। और ये सारा आयुर्वेद एजुकेशन ये बोर्ड द्वारा रेगुलेट होता था डिफरेंट स्टेट्स में। फिर उसके बाद 1970 में CCIM आई और 2020 में NCISM एक्ट आया। और यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये है कि हमारे देश में जो पहला आयुर्वेदिक कॉलेज था जो गवर्नमेंट सेक्टर में खुला था, वो 1889 में खुला था। और शायद जो है वो बहुत कम लोगों को ये याद आ पा रहा होगा कि ये त्रिवेंद्रम में इसको स्टार्ट किया था। सेकंड ओल्डेस्ट कॉलेज हमारा खुला था, वो 19 आई थिंक 92 में खुला था, वो लाहौर में खुला था। और 1999 में पीलीभीत में खुला था। तो लाहौर वाला तो बंद हो गया, बाकी भी चेंज होते गए। और पीलीभीत वाला कॉलेज आज भी रन कर रहा है। तो ये एक जो हमारी बहुत लगभग 100 साल पहले की स्थिति थी। फिर BHU में 1916 में BHU स्टार्ट हुई और BHU में फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद स्टार्ट हुआ। पहले एक कॉलेज के रूप में थे, संस्कृत कॉलेज था, फिर वो आयुर्वेदिक कॉलेज में कन्वर्ट हुआ। और उसके 50 साल के बाद गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 1965 में। और उसके 10 साल के बाद NIA बना 1976 में। तो ये एक जर्नी थी जो आयुर्वेद एजुकेशन से रिलेटेड थी। और इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी एक प्राचीन परंपरा थी कि हमारे एक गुरुकुल परंपरा थी, और अभी आज की जो मॉडर्न टीचिंग मेथोडोलॉजी है, तो हमें तो ये देखना चाहिए कि हमारे उस गुरुकुल सिस्टम में जो टीचिंग मेथोडोलॉजी थी और आज की जो मेथोडोलॉजी है, बेटर तो ये होगा कि हम दोनों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करें। और डेफिनेटली अगर हम ऐसा करते हैं तो वी विल बी एट विनिंग एज। हेलो। तो अभी ये हमें देखना है कि हमारे जो गुरुकुल सिस्टम में अच्छी बातें क्या थी इन रिगार्ड टू टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो हमें लगता है कि जो टीचर और स्टूडेंट बहुत ही एक साथ बैठ के पढ़ते थे, तो एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग का एटमॉस्फेयर होता था। एजुकेशन वैल्यू बेस्ड होती थी, होलिस्टिक अप्रोच थी, और जो कल्चरल प्रिजर्वेशन था उस समय का, वो मेंटेन करके रखा जाता था। तो यहाँ पे एक जो बहुत इम्पोर्टेंट गुरुकुल सिस्टम में थी कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग एंड वैल्यू बेस्ड लर्निंग। Means value based means the discipline, the culture, attachment, and a very strong connection with the teacher and the society and the family. अभी जो मॉडर्न जो लर्निंग सिस्टम है या मॉडर्न जो टीचिंग मैथडोलॉजी है, तो इसमें भी कुछ अच्छी बात है, जैसे कि करिकुलम मोर डाइवर्स, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की गुंजाइश है, ग्लोबल एक्सपोजर होता है, स्केलेबिलिटी और एसेसिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर हम आज के इस प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में इन दोनों चीज़ों को क्लब कर दें, मीन्स हमारी पर्सनलाइज लर्निंग भी हो, हमारी एजुकेशन वैल्यू बेस्ड हो, होलिस्टिक अप्रोच हो। मीन्स होलिस्टिक अप्रोच कि केवल हम एक सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं दे रहे हैं, हम एक ओवरऑल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ओवरऑल जो ग्रोथ है स्टूडेंट्स की, उस पर भी फोकस कर रहे हैं। और साथ साथ में जो ग्लोबली जो एडवांसमेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो एक्सपोजर है,
करिकुलम की जो डाइवर्सिटी है उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होगी आज के समय में एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट को, एक आयुर्वेद को एक ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए। अब इन सब में एक अच्छी बात ये है कि जो हमारा एनसीआईएसएम है, एनसीआईएसएम ने मैं समझता हूँ बड़े बारीकी से इस बात को देखा, और जो अभी करिकुलम रिवाइज करना शुरू किया है, तो उसमें इन सब चीज़ों को जहाँ ज़रूरत है उसका समावेश किया है। इस लेवल पे तो हम काफ़ी अच्छी स्थिति में धीरे-धीरे आते जा रहे हैं। अब दूसरा एस्पेक्ट है इन सभी का इम्प्लीमेंटेशन। बहुत अच्छा सब कुछ हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अगर बहुत अच्छा नहीं होता है, तो जिस इंटेंशन से हम करना चाहते हैं चीज़ों को, वो उतना नहीं हो पाती हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सारे टीचर्स की हो जाती है कि हम इन सारे प्रोग्राम्स का, टीचिंग का इम्प्लीमेंटेशन उस इंटेंशन से करें कि जो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार द्वारा डिक्लेयर की गई है, उसके हिसाब से हम टीचिंग कर सकें। और यहाँ पे कुछ हमारे सुझाव भी बीच-बीच में मैं देना चाहूँगा कि जो हमारी मेथोडोलॉजी है ना? इसमें 2 एस्पेक्ट आते हैं कि एक तो हमारे जो थ्योरी पार्ट होता है, और दूसरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। क्योंकि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो हमें स्किलफुल करता है, और जब नॉलेज और स्किल एक साथ आती है, आई थिंक ये कॉम्बिनेशन हमें एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। और जो हमारी फ्यूचर की सक्सेस है वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि हाउ वी आर नॉलेजेबल एंड स्किलफुल। तो इसमें जो मैं समझता हूँ कि जो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसमें जो थ्योरी है वो लगभग 70% टाइम थ्योरी पे और 30% प्रैक्टिकल्स पे देना चाहिए। जो पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें लगभग 50-50%, 50% थ्योरी एंड 50% प्रैक्टिकल। लेकिन जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें थ्योरी का 30% एंड प्रैक्टिकल में 70% टाइम को डिवोट करना चाहिए। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे जो टाइम का एडजस्टमेंट है, आई थिंक दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे केवल 20% ही टाइम थ्योरी पर, अदरवाइज 80% टाइम उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जो कि ऐसे सब्जेक्ट हैं जो डायरेक्टली क्लिनिकल नहीं हैं, उनमें, ताकि हम हमारे जो सिद्धांत हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उनके एप्लीकेशंस के बारे में सोच सकें। और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि डायरेक्टली पेशेंट के साथ इंटरेक्शन है, वहाँ पे 80% टाइम पेशेंट्स के साथ और 20% स्टडी के साथ जाना चाहिए। एक और जो वीक पॉइंट जो मुझे हमेशा एक हिट करता है, और मैं इसके बारे में जब भी कुछ ऐसा होता है तो मिनिस्ट्री में भी बात करता हूँ, या आरएबी के द्वारा संचालित होता है, मैं उनके अधिकारियों से भी बात करता हूँ कि जो हमारा सीएमई और आरओटीपी का प्रोग्राम है, विशेष रूप से जो मेडिकल अफसर्स और जो हमारे टीचिंग फैकल्टीज़ हैं उनके लिए होता है। तो मुझे लगता है कि इस एस्पेक्ट पे कुछ रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि होता ये है कि वीक लॉन्ग प्रोग्राम होता है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, और उसमें हर दिन बहुत टाइट प्रोग्राम होता है, बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, और अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि बहुत सारी थ्योरी पार्ट का रिवीजन होता है, जबकि जो मैं समझता हूँ इस टाइम का यूटिलाइजेशन, हम अगर कोई एक ही टॉपिक को डिसाइड करें, एक ही डिजीज को डिसाइड करें, और उसके ऊपर ही हम ये 5 डेज और 7 डेज को एक्सक्लूसिवली डिवोट करें, आई थिंक दैट विल बी मोर यूज़फुल। इसी तरीके से जो आरओटीपी जो सीएमई का प्रोग्राम जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स के लिए है, वो एक्चुअल में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं पेशेंट्स के साथ, फील्ड के साथ। तो उनको एक डिफरेंट टाइप की नॉलेज के रिफ्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए उस प्रैक्टिस को ध्यान में रख के उनके जो
फील्ड में जो इश्यूज आ रहे हैं उनको ध्यान में रख के इसको डिजाइन किया जाना चाहिए। ये एक थोड़ा सा लैकुना जो मैं देखता हूँ, उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कहने की कोशिश करता हूँ और इसमें सुधार किया जाना चाहिए। दूसरा ये है कि एक और जो एनसीआईएसएम के लेवल पे भी इसको लिया जा सकता है, और दूसरा अगर एनसीआईएसएम के लेवल पे नहीं भी अगर लिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के लेवल पे भी अगर हमारे टीचर्स इस एंगल से थोड़ा सा अगर एक टीचिंग करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे फंडामेंटल्स हैं जिनको हम बेसिक प्रिंसिपल्स बोलते हैं ना, तो थ्योरी तो हमने पढ़ी और यहाँ पे हमें जो उनका अप्लाइड बेसिक प्रिंसिपल है, अप्लाइड एस्पेक्ट है, उसको देखना जरूरी होता है। इसीलिए जैसे द्रवगुण है, द्रवगुण में एक थ्योरेटिकल है, लेकिन जो क्लिनिकल द्रवगुण है अगर हम उसका ओरिएंटेशन करेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आगे चल के कि कैसे हम मेडिसिन को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से हम रसशास्त्र की बात कर रहे हैं तो जो रसशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है कि फ्यूचर में हमें इंडस्ट्री से जोड़ता है। तो एक इंडस्ट्रियल रसशास्त्र के बारे में भी एक्सपोजर किया जाना चाहिए स्टूडेंट्स का। जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें प्लानिंग होती है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको जो आयुर्वेद से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के साथ साथ अलाइड सब्जेक्ट, जैसे कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं आगे चल के फ्यूचर में अपनी खुद की क्लिनिक खोलना चाहते हैं या किसी बड़े हॉस्पिटल में ज्वाइन करना चाहते हैं या खुद का बड़ा हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या किसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो उनको टाइप की एक्सपोजर जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, क्लिनिकल रिसर्च का, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का या ट्रांसलेशनल रिसर्च का ये एक्सपोजर भी हमें देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे टीचिंग फैकल्टीज़ हैं वो इसको अपने उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं। दूसरा ये है कि जो टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी बहुत एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का हो रहा है और ग्लोबली इसका एडवांटेज भी ले रहे हैं लोग। तो मैं समझता हूँ कि जो एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल है या फिर एआई का इस्तेमाल जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए किया जा सकता है, और ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है क्योंकि इसमें हम वो सब चीज़ें स्वयं करके सीख सकते हैं जो कि एक रियल सिनेरियो में कभी-कभी पॉसिबल नहीं होती हैं। जस्ट लाइक छोटी-मोटी हमें सर्जरी से रिलेटेड प्रोसीजर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम पंचकर्मा की जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम दूसरे टाइप की जो और आयुर्वेद में जो डिस्क्राइब्ड हमारी प्रोसीजर्स हैं उनको भी हम करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें स्किल भी डेवलप होती है हमारी और कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। फाइनल ईयर आते-आते लगभग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो रेडी होते हैं फील्ड में आने के लिए या फिर हायर एजुकेशन में जाने के लिए। तो इस लेवल पे जैसा हमारा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम इनिशियल लेवल पे होता है जब बच्चा एडमिशन लेता है, उसी टाइप का फाइनल ईयर में आने के बाद मैं समझता हूँ कि एक एक्सपोजर ज़रूरी होता है कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस सपोज अगर आप प्लान करते हैं कि मैं फ्यूचर में क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाऊंगा या फिर हमें आगे एजुकेशन में जाना है या रिसर्च के फील्ड में जाना है या कॉरपोरेट वेलनेस के फील्ड में जाना है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फील्ड में जाना है या जो अभी एक इमर्जिंग ब्रांच है इंटीग्रेटिव हेल्थ, उसके लिए हमें जाना है। तो ये एक एक्सपोजर 10-15 डेज का मैं समझता हूँ कि हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ज़रूर करवाया जाना चाहिए। इससे उनके जो फ्यूचर में जो प्लान कर रहे हैं उसमें काफ़ी क्लैरिटी आएगी। सेकंड एस्पेक्ट है क्लिनिकल सर्विसेज का। क्लिनिकल सर्विसेज में जो आयुर्वेद की स्ट्रेंथ पूरी दुनिया मानता है और हम लोग भी इस चीज़ को बोलते हैं कि जो हमारी सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ है
वो है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के रूप में आयुर्वेद। अब ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को हम कैसे इन प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो जो हमारे रोग और रोगी परीक्षा है, वो सहजता से कर पाना। ये मैं समझता हूँ कि ये देखने में बहुत छोटी चीज़ लगती है, बट इट इज़ ए बिगेस्ट चैलेंज फॉर बोथ, फॉर फैकल्टी एज़ वेल एज़ फॉर स्टूडेंट। तो ज़रूरत ये है कि हमें इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो, उतनी हमारे स्टडी पीरियड में करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें हमने अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप कर ली, तो आप विश्वास मानिए कि आप बहुत ही अच्छे एक आयुर्वेदा फिजिशियंस आफ्टर 5 इयर्स बन के निकल सकते हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ख़ास तौर से जो हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, टू प्रैक्टिस पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान। क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ कोई वन साइज फिट ऑल वाला कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में नहीं चलता है, और यही हमारी हमको डिफरेंशिएट करता है मॉडर्न मेडिसिन से। तो इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है ना? देखा होगा कि जैसे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो वहाँ पे केस स्टडीज़ होती हैं, और उन केस स्टडीज़ के थ्रू प्रैक्टिस करके मैनेजमेंट आफ्टर एमबीए वो अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर इस एस्पेक्ट को, जो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, कि कैसे हम प्रकृति के हिसाब से, अग्नि के हिसाब से, बाकी जो पैरामीटर्स के हिसाब से अगर वेरिएशंस आते हैं, तो हमारे ट्रीटमेंट में कैसे चेंज आएंगे, इनकी इन राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सोच तो लेते हैं कि हाँ, ये ऐसा करना चाहिए और इसको हमें करना है, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही समय होता है कि हम इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। आई थिंक इससे ये चीज़ आपको आयुर्वेद में एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है, कि अगर आप आयुर्वेदिक मैथडोलॉजी से, हाँ, मॉडर्न मेडिसिन की क्लिनिकल मेथड आती है तो बहुत ही अच्छा है, वो आपका एक एडिड एडवांटेज हो गया। लेकिन अगर आपको रोग और रोगी परीक्षा में आपने एक्सपर्टीज़ डेवलप कर ली, ट्रीटमेंट के लिए पर्सनलाइज़ ट्रीटमेंट प्लान कैसे तैयार किया जाता है, उसको सीख लिया, और तीसरी जो आयुर्वेद की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, काउंसलिंग टेक्निक। क्योंकि ये माना जाता है कि मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद दोनों के प्रैक्टिशनर्स में एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रख के और उसी के अनुसार पेशेंट्स को सलाह देता है। तो ये जो काउंसलिंग है, मैं समझता हूँ कि ये जो एक, क्योंकि ये भी एक टेक्निक है, और इस टेक्निक में आप जितना अपने को तैयार कर लेंगे, सक्सेस लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि काउंसलिंग टेक्निक में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो आता है, वो होता है कम्युनिकेशन का। क्योंकि आज भी हम लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब हम पेशेंट के साथ बात करते हैं, तभी कम्युनिकेशन होता है। कहीं पे भी लाइफ में कम्युनिकेशन एक ऐसा एस्पेक्ट है कि अगर हम इसमें एक्सपर्टीज़ डेवलप कर लेते हैं, तो भी हमारी पर्सनल, प्रोफ़ेशनल सक्सेस में ये बहुत रोल प्ले करती है। तो ये क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ के लिए हमारे ये 3 या 4 पॉइंट हो गए। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। जो कम्युनिटी आउटरीच है, मीन्स जो हमारे जो कॉलेज है, कॉलेज से एफिलिएटेड हॉस्पिटल है, और उसके आसपास की जो कम्युनिटी है। क्योंकि जब हम केवल क्लासरूम्स में बैठ के पढ़ते हैं, केवल हॉस्पिटल में पेशेंट को देखते हैं, रियल सिचुएशन के बारे में उतनी जानकारी नहीं हो पाती है। तो एक हमें इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए कि हम जो हमारे कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, इनमें थोड़ी-सी रेगुलरिटी हो, एक ही जगह पे रिपीटेड कैंप्स जाने चाहिए, ताकि पेशेंट्स का फ़ॉलो-अप प्रॉपर्ली देखा जा सके। वहाँ पे अवेयरनेस कैंप्स मीन्स हम पेशेंट्स को या जो हमारा एक स्ट्रेंथ है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षा, हम कैसे हेल्थ को मेंटेन करें, तो वो
जब तक आप उस नॉलेज को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आप बताएँगे नहीं कि क्या करने से आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम जो हमारी कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटी है, स्टडी अगर उस समय हमारी ये प्रैक्टिस हो जाती है, तो फ्यूचर में ये बड़े काम की चीज़ होती है और बड़े काम में आती है। हर इंस्टीट्यूशन में जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कुछ स्पेशलाइज़्ड ट्रीटमेंट सेंटर्स या फैसिलिटीज़ ज़रूर जो है वो डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि जो पेशेंट अट्रैक्ट होने के लिए, क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट है कि किसी को भी कुछ भी तकलीफ होती है तो वो स्पेशलिस्ट खोजता है। और आयुर्वेद में भी हमारी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं। अगर उस ढंग से भी हम अपने को विकसित करते हैं तो पेशेंट को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं और बेटर पेशेंट सर्विसेज हम दे सकते हैं। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसा कि अभी हमने पिछले दिनों जो भी घटनाक्रम हुआ है और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसा कुछ केस में चल रहा था। तो हमारे स्टूडेंट्स को जो रूल्स, जो रेगुलेटरी लैंडस्केपेज हैं, जो खास तौर से आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को लेके, इसका एक्सपोज़र भी बहुत ज़रूरी है। और ये या तो इंस्टीट्यूशन के द्वारा हो या फिर हमारे स्टूडेंट्स को खुद अवेयर होके इस संबंध में नॉलेज ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं, फील्ड में होते हैं, तो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस प्रैक्टिस से रिलेटेड होते हैं। वो आपके सामने आते हैं और उनसे फिर आपको फेस भी करना होता है, उनको भी करना होता है। तो अगर ये जानकारियाँ रहेंगी, तो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जो थर्ड फोकस एरिया है, दैट इज़ द रिसर्च। आज बड़ी अजीब सी स्थिति होती है ना कि जब कोई व्यक्ति मिलता है जो कि आयुर्वेद का नहीं है, तो वो सबसे पहले यही कहता है कि हाँ, वो ऐसा है कि आयुर्वेद में रिसर्च की जानी चाहिए। तो सोच के हँसी भी आती है, मतलब वो सामने वाले की अज्ञानता पे कि आयुर्वेद में रिसर्च किस लेवल तक पहुँच गया है कि शायद लोगों को जानकारी नहीं है। इसी चीज़ को ध्यान में रख के जब मैं सीसीआरएस में था, तो एक वॉल्यूम पब्लिश किया था जिसमें कि अ, उस समय तक जो भी पेपर्स पब्लिश हुए थे, रिसर्च पेपर्स, उनकी केवल कैटलॉगिंग की गई थी। और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि केवल उन आर्टिकल्स के टाइटल्स की लिस्ट के साथ जो कंपाइलेशन हुआ था, वो 1100 से ज़्यादा पेज का था। तो आप ये मान के चलिए कि अगर केवल टाइटल्स 1100 पेज में आ रहे हैं, तो जो हमारा रिसर्च वॉल्यूम है, वो कितना बड़ा होगा। दूसरा ये है कि जैसे अभी आप जब पीजी में होते हैं, खास तौर से जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें उनको दिक्कत होती है कि हमने कोई क्लिनिकल स्टडी प्लान की है, तो अभी हमें सीटीआरआई में रजिस्ट्रेशन करवाना है और सीटीआरआई में फिर कुछ अपने इश्यूज़ आते हैं। इसको भी मैंने कई सारे प्लेटफॉर्म पे इस बात को रखा भी है कि क्यों नहीं हमारा आयुष का खुद का सीटीआरआई रजिस्ट्री होनी चाहिए और हमारी खुद की एक सेंट्रल रिपोजिटरी रिसर्च से रिलेटेड हो। क्योंकि होता ये है ना कि जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट हैं पूरे कंट्री में, कोई 125 से ज़्यादा हैं, तो इन सभी में जो भी रिसर्चेज होती हैं, काफ़ी सारी जगह पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है। तो अगर हमारी कोई सेंट्रल रिपोजिटरी है या सेंट्रल रजिस्ट्री हमारी अपनी है, तो हमें ये बिल्कुल मालूम हो सकता है कि अभी इस टॉपिक पे अगर मैं कोई बात करना चाहता हूँ, ऑलरेडी उसमें अभी क्या-क्या हो चुका है। अ, दूसरा ये होता है कि हम किस टॉपिक पे रिसर्च करें। तो इसके लिए एक उम, एक हायरार्की होती है। सबसे पहले जब हम कोई रिसर्च प्लान करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी लोकल नीड क्या है। हम जिस एरिया में हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों का की जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो क्या हैं? उसके बाद हम देखते हैं कि हम जिस स्टेट में हैं, उस स्टेट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हैं। फिर हम नेशनल लेवल की बात करते हैं और उसके बाद हम इंटरनेशनल एस्पेक्ट को देखते हैं।
और जो एक लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इंडस्ट्री नीड। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो उपयोगी हों, या तो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम में आने वाली हो, या फिर वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली हो। अदरवाइज तो क्या होता है कि हम जो भी रिसर्चेज कर रहे हैं अल्टीमेटली वो एक डिजर्टेशन के रूप में या थीसिस के रूप में हमारी लाइब्रेरी में ही अवेलेबल होती है। बहुत ज़रूरी है उसको कन्वर्ट करना, और यहीं पे रोल इम्पोर्टेंट रोल ट्रांसलेशनल रिसर्च का। जो हमारी नॉलेज है उसको हम यूटिलिटी में कैसे कन्वर्ट करें, और ये सब करने के साथ साथ हमेशा टारगेट करना है, क्योंकि देखिए हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिसर्च, और रिसर्च कैसे पता लगती है कि एक इस साइंस में रिसर्च अच्छी हो रही है, वो पता लगती है कि जो हमारे पब्लिकेशन हैं वो किस क्वालिटी के हैं। तो जो गुड क्वालिटी रिसर्च पब्लिकेशन, और ख़ास तौर से इंडेक्स जर्नल में, देखिए वो कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो गया कि हम लोग बोलते थे पीयर रिव्यूड जर्नल, है ना। ये तो अभी इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लॉइट किया है लोगों ने कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसने इसको डिस्कार्ड कर दिया है, और अब हमें जो भी इंडेक्स जर्नल्स हैं उनमें पब्लिश करने के लिए भेजना चाहिए, और उसमें ही पब्लिश किया हुआ क्रेडिटेबल भी रहेगा। चौथा एस्पेक्ट जो जिस पे मैं कुछ बात करना चाहूँगा वो है इंटरप्रेन्योरशिप का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नया भी है और इंटरेस्टिंग भी है। देखिए अभी अगर हम देखें कि जो हमारा ग्लोबल आयुर्वेदा मार्केट है, तो ये 2022 में इसको जब एसेस किया गया था, लगभग $5,000 मिलियन यूएस डॉलर का ये मार्केट, और इसका ये मान के चल रहे हैं कि लगभग ये 2028 में ये $10,000 मिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी, और इसकी जो ग्रोथ रेट देखी गई है वो लगभग 11.89 और 11.90 के आसपास देखी गई है। तो ये ऐसा एरिया है जो हमारे स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, आई थिंक अगर वो प्लानिंग करें तो इवन दे मे बी पार्ट ऑफ दिस एंटरप्रेन्योरशिप। और ये बड़ा एक्साइटिंग एरिया है, क्योंकि अभी हम इसको बोलते हैं ग्रीन गोल्ड, और पूरी दुनिया इसको ग्रीन गोल्ड के नाम से देखती है। तो वी आर सिटिंग ऑन गोल्ड माइन, और वो गोल्ड भी कैसा है, दैट इज़ ग्रीन गोल्ड। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इसको जो पहले कैप्चर करेगा, आई थिंक ही विल बी द विनर। इसको बोलते हैं ना कि एक अर्ली मूवर्स एडवांटेज, कि जो जितनी पहले इस इंडस्ट्री में, इंटरप्रेन्योर के फील्ड में इंटर होगा, उतना ही वो जल्दी या पहले दूर तक जाएगा। तो मैं आज के इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी को इस फील्ड की तरफ भी इनवाइट करना चाहूँगा, कि जो रूटीन के हमारे हैं फील्ड, कि हमें प्रैक्टिस में जाना है, या हमें रिसर्च में जाना है, या हमें टीचिंग में जाना है, तो एक ये भी एक ग्लोबल फील्ड है जिसमें कि आप अभी से अपनी तैयारी करके और बहुत एक अच्छे लेवल पे अपनी उपस्थिति इसमें दर्ज कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमें कुछ करना है तो कुछ चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखनी होती हैं, खास तौर से कि जब हम कोई आयुर्वेदा बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचते हैं ना, तो कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं कि जिनको देख के फिर हमें प्लान करना होता है कि हमें इसमें क्या करना है ना। तो हमें उसके लिए पहले कुछ मार्केट रिसर्च उस एरिया में, इवन चाहे हम अपनी प्रैक्टिस भी शुरू करना चाहें, तो ऐसा नहीं है कि अब कहीं पे भी प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो जब कहीं पे भी करेंगे तो वंस यू आर इन मार्केट, दैट मीन्स आपके ऊपर ये हो गया कि यू आर इन बिजनेस। तो जब आप बिजनेस के एंगल से आ गए हैं ना, तो अभी मार्केट के ट्रेंड, आप किस लोकेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस टाइप की लोग हैं, किस टाइप की वहाँ पे डिजीज़ का स्टेटस है, इन सब का अगर फीडबैक लेके अगर आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं कि तो आपका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा होता है।
अदरवाइज तो क्या होता है कि आप में बहुत अच्छी नॉलेज है, आपने इन्वेस्ट भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन सक्सेस उस कंपैरिजन में नहीं मिल पाई। तो ज़रूरी ये होता है कि हम जब भी स्टार्ट कर रहे हैं तो जो ये सारे एस्पेक्ट हैं इनको बराबर में ध्यान दें। हमारा बिजनेस मॉडल क्या होगा, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्लिनिक शुरू करना चाह रहे हैं, हमारा वेलनेस सेंटर होगा, या हम कोई प्रोडक्ट लाइन में जाने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। फिर उससे रिलेटेड जो हमारी लीगल या रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं, सर्टिफिकेशंस कौन कौन से ज़रूरी होते हैं, ब्रांडिंग और मार्केटिंग। देखिए ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आज के समय में बहुत ज़रूरी होती हैं सक्सेस के लिए, कि रिगार्डिंग योर ब्रांडिंग और मार्केटिंग, है ना। ब्रांडिंग में तो इवन जब आप प्रैक्टिस में होते हैं ना, तो यू आर योर ओन ब्रांड। मतलब जो आपकी छवि होती है, आपकी जो पर्सनल इमेज होती है, वो भी आपके ब्रांड का काम करती है। देन बहुत सारी फाइनेंशियल प्लानिंग और टेक्नोलॉजी वहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट होते हैं कि जो हमें एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में अगर हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब इसी से जुड़ी हुई एक और चीज़ है, वो है इनोवेशन की। तो आप लोगों ने सुना होगा कि रिसर्च तो सुना होगा, लेकिन इनोवेशन थोड़ा सा नया नया सा लगता है कि ये इनोवेशन में क्या है। रिसर्च में भी तो हम कुछ नया कर रहे हैं, इनोवेशन में क्या है। तो इनोवेशन का एक्चुअल मीनिंग ये है कि हम जो हमारी रिसर्चेज हैं उनको हम प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और वो प्रोडक्ट कैसा है जो मार्केटेबल हो, जिसकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू हो। तो कोई भी आपकी इनोवेटिव अप्रोच होती है, वो हमेशा इस चीज़ से लिंक्ड होती है कि हम उसको मार्केट कर सकें, हम उसकी कॉमर्शियल वैल्यू उससे ले सकें। तो ये आपकी जो ख़ास तौर से जो कॉमर्शियल एंगल है, इसमें बहुत बड़ा योगदान देती है। और अच्छे इनोवेशन के लिए ज़रूरी है कि अगर हमारे पास कुछ पेटेंट्स हैं, देखिए ये कुछ एरिया ऐसे हैं कि जो थोड़े से अभी अछूते हैं, हमें बहुत पेटेंट्स की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई एक पेटेंट होता है, तो आपके पास 2 अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। एक तो ये है कि उस पेटेंट का यूज़ करके आप मार्केट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, या जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड है, उसमें आप उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देके और एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन अपनी बना सकते हैं। तो इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो और इन सब चीज़ों को कि हमने जो एजुकेशन की बात की, हमने जो क्लिनिकल सर्विसेज की बात की, हमने जो रिसर्च की बात की, या जो इनोवेशन की बात की, आई थिंक ये सारे ही एस्पेक्ट ऐसे हैं कि जिनमें हम जितना ज़्यादा मंथन करेंगे, हमें कुछ हमेशा नया ही मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि आज के कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, तो मैं अपनी बात भी समाप्त करना चाहूँगा, और आप सभी का आह्वान करना चाहूँगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जो हम सभी आयुर्वेद के स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे स्टूडेंट्स हों, फैकल्टी हों, सीनियर पर्सन हों, एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ-साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है, जिसमें हम थोड़ा-सा लैक करते हैं, नेटवर्किंग का। हमारी अपने जो कम्युनिटी है, हमारे आयुर्वेद के जो लोग हैं, चाहे वो जूनियर हों या सीनियर हों, हमें एक अच्छी नेटवर्किंग बना के रखनी चाहिए। और आप ये मान के चलिए कि दुनिया में जो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके पीछे की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है उनका नेटवर्क, उनकी नेटवर्किंग है, क्योंकि वो क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम की तरीके से काम करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऑर्गेनाइजर को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं आप सभी से एक डायरेक्ट संवाद कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
Thank you so much, sir, for your comprehensive and enlightening talk, where you have shared very fruitful perspective and wealth of your year-long experience, inspiring us all to think critically about the challenges and opportunities that lie ahead in front of us. Now, to further add more effectiveness to Abhimanyu sir talk, I invite Tanmay Goswami sir, former Vice Chancellor of Sanskrit University and also Chief Organizer of Kulguru Sambhashar, to conclude Abhimanyu sir debate. Sir, you are not audible to us. Sir, you are not audible to us. No, sir, we can't hear you. You can change the mode of the speaker from this microphone to speaker. Am I audible now? Yes, sir, you are not audible. Okay. सभी आदरणीय गुरुजनों को और यहाँ पर उपस्थित सभी आयुर्वेदिक विद्वानों को और वैद्यों को मेरा हार्दिक प्रणाम। कुलगुरु संभाष और ये विश्व आयुर्वेद परिषद के तत्वावधान में ये जो एक प्रयोग आज किया है, ये आज एक इतिहास ही बनके हमारे सामने रहेगा, क्योंकि जैसा आज आदरणीय प्रोफेसर अभिमन्यु सर ने कहा कि इतिहास के चिंतन के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। उन्होंने सब कुछ को एक साथ इतने छोटे समय में हमारे सामने जो इतने एफिशिएंट पॉइंट्स रखे हैं, इन पर चिंतन बराबर हमको इस संभाष के माध्यम से करते रहना है। सबसे बड़ी बात जो एजुकेशन सेक्टर, क्लिनिकल रिसर्च सेक्टर और क्लिनिकल सेक्टर और रिसर्च सेक्टर और एंटरप्रेन्योरशिप में जो आदरणीय अभिमन्यु सर ने कही, उसमें जो करिकुलम डाइवर्सिटी एज पर द ग्लोबल नीड, ये एक इतना इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग पॉइंट है जहां से हम सब कुछ बदल सकते हैं। क्योंकि सत्य है सर, आपने जो बात कही है कि यदि हमारा करिकुलम ग्लोबली एक्सेप्टेड हो जाता है तो देन इट विल बी अ बिग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एजुकेशन साइड ऑफ द आयुर्वेदा। और सर आपने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट कहा कि इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिसीज तो बहुत बनती हैं, सब कुछ अच्छा होता है, पर यदि वो ग्रास रूट लेवल तक टीचर उसको स्टूडेंट तक पहुंचा दे, इससे बड़ा और कोई योगदान नहीं होगा। एंड दैट इज गोइंग ऑन। और जो सर आपने जो बात कही उन पर हम लोग और वर्कआउट करने की, इस पर कैसे करें हम लोग, इस पर हम सभी जो पूर्व कुलपति लोग हैं, जैसे अभी हमारे बीच में गुरुदेव पीके प्रजापति सर हैं, प्रोफेसर संजीव ओझा जी हैं, प्रोफेसर महेश व्यास जी हैं, जो एकेडमिकली बहुत एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और सर आप हैं, तो सभी के मार्गदर्शन से एक चीज तो है कि जो भी आपने कहा कि प्रैक्टिकल और थियरी में जो एक संतुलन है, वो कहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा जाना चाहिए, सीएमई और आरओटीपी में किस तरीके से फील्ड डिजाइन को डाला जाना चाहिए, कैसे क्लिनिकल द्रव्य गुण, जो आपने कितनी बढ़िया जो एक उस पॉइंट को आपने स्ट्रेस आउट किया है सर, और इंडस्ट्रियल रसशास्त्र को एंड ट्रांसलेशन इन रिसर्च, ये जो और एंड वैल्यू एडिशन ऑफ द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसके ऊपर हम लोगों को आपने बहुत बड़ा एक विषय दिया है, जिस पर हम लोगों को निरंतर अब और कार्य को करते रहना है सर, आपके मार्गदर्शन में। क्लिनिकल में जो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट की जो पॉइंट आज जो हमारे 300 से ज्यादा, करीब 400 से ज्यादा लोग वैद्य जो जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट विषय है
कस्टमाइज्ड है, टेलर्ड है हमारा मेडिकल सिस्टम, तो वो जो उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है कि कितने तरह की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जो आज आदरणीय प्रोफेसर अभिमन्यु सर ने जो अभी हम लोगों को जो बात इस पर स्ट्रेस आउट किया है, इस पर और प्रोटोकॉल्स जो बनाने के लिए सर ने कहा है कि कैसे हम लोग प्रोटोकॉल्स बनाएं कि वो प्रैक्टिस में कस्टमाइज्ड प्रैक्टिस जो है, पर्सनलाइज्ड प्रैक्टिस जो है, उसमें वो सहायता मिले, एंड दैट इज अपर हैंड ऑफ आयुर्वेदा। और जो आपने काउंसलिंग कम्युनिकेशनल स्किल्स की बात कही सर, आप इसके हमारे सामने साक्षात प्रमाण है। बहुत शांत होकर के अपनी बात को डीप रूट तक पहुंचाना और बहुत पीसफुली अपनी बात को रखना, ये आप में देखने को मिलता है और आज के हमारे विदेश मंत्रालय के जयशंकर जी में भी देखने को मिलता है। कम्युनिटी आउटरीच की जो आपने बात कही कि कैसे करके उस क्षेत्र में जहां पर एक संस्था है, अब वो उस क्षेत्र के सभी लोगों को कैसे आयुर्वेद के द्वारा बेनिफिट देकर के इमरजेंसीज को मिनिमाइज कर दे, वो भी, इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं ऑलरेडी विश्व आयुर्वेद परिषद, और आगे भी और करेंगे। रिसर्च के एरिया में जो आपने हमारा अपना CDRI बेस, जहां पर कि हमारी अपनी सेंट्रल रजिस्ट्री हो, और कौन कौन से टॉपिक्स जो आज की नीड के अनुसार हो, इंडस्ट्री की नीड हो, चाहे क्लिनिकल प्रैक्टिस की नीड हो, अदरवाइज तो वो रिसर्च सिर्फ थ्योरेटिकल रिसर्च हो गई। तो सर, क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन के बारे में जो आपने कहा, इस पर भी विश्व आयुर्वेद परिषद बहुत हमारे प्रेसिडेंट गोविंद शुक्ला जी के मार्गदर्शन में और हमारे आदरणीय गुरुदेव योगेश मिश्रा जी के मार्गदर्शन में और वैद्य सुरेंद्र चौधरी जी के मार्गदर्शन में हम लोग इसमें विचार कर ही रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं, और आगे भी इसमें और आगे बढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में जो आपने पहला वर्ड यूज किया है, ये शायद मैं समझता हूं कि जितनी भी आज हमारी वैद्यों की ये जो एक समूह में हम सभी लोग जो उपस्थित हैं, 300 प्लस, ग्रीन गोल्ड ये शब्द जो आज आपने दिया है, ये शायद ये मानक बनना चाहिए, और ये आपके द्वारा ये इसका जैसे एलोपैथी में या हर जगह पर साइंस में द वन हु कॉइन द टर्म, उसका नाम हिस्ट्री में रखा जाता है, वैसे ये नाम आपके द्वारा ये प्रतिपादित हो, ऐसा हमारी अपेक्षा है। जो आपने ब्रांडिंग, सर्टिफिकेशंस, मार्केटिंग, पेटेंट एंड नेटवर्किंग पर जो आपने जो जो पॉइंट्स में जो सूत्र दिया है, इस पर अच्छी स्टडी करके, इसकी स्ट्रक्चरिंग बना करके, ये संगठन विश्व आयुर्वेद परिषद के संगठन का ये कि हमारी ये जो कुलपति संभाष का जो ये जो हमारा जो कार्य है, इस कार्य के में ये कार्य करने के लिए हमको और अच्छी तरह से संबल मिला है। हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव अपना मार्गदर्शन हम सभी को देते रहेंगे, और आयुर्वेद में जो आपने न भूतो न भविष्यति, मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा जो योगदान दिया है, उसको आगे जो आगे की जो जनरेशन है वो इसको बढ़ाती रहेंगी। यहीं पर मैं कहता हुआ अपनी बातों को विराम दूंगा। समय चूंकि आपका है आज का, और इस कार्यक्रम में मैंने आपने जो कहा है उसको नट शेल में जरूर रखने की कोशिश करी है, यद्यपि वो संभव नहीं है, और फिर भी मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए आयुर्वेदिक परिवार है जो हमारा, उनको आज अवश्य इस कार्यक्रम से लाभ होगा, और आगे भी हम लोग इसी तरह से और सूक्ष्म चिंतन, मंथन, विवेचना करेंगे, जिससे कि एक सही स्वरूप और अच्छी तरह से हम लोग प्रदान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for giving this brief insight of Dr. Abhimanyu sir deliberation, and equal thanks to Abhimanyu sir as our today's guest speaker for sharing his insightful talk with each one of us. Now, moving ahead, I would like to invite Professor Yogesh Mishra sir, Organizing Secretary of Vishwa Ayurveda Parishad, for his presidential address. धन्यवाद। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। आज के इस बहुत ही श्रेष्ठ संयोजन में होने वाले और श्रेष्ठ वक्तृत्व कला के धनी, लेकिन केवल वक्तृत्व कला के नहीं, कर्तृत्व कला के भी धनी ऐसे प्रोफेसर अभिमन्यु जी का, और मुझे एक विशेष लाभ ये है, मैं उस नगरी में रहता हूँ जहाँ से डॉक्टर अभिमन्यु जी का शैक्षिक
इंटरप्रेन्योरशिप कहिए या शैक्षिक विकसित विकास का जहां से प्रारंभ हुआ, तो इसलिए मैं इस आज के अवसर का दोहरा लाभ उठाने की स्थिति में हूं। विषय जो डॉक्टर साहब ने रखा उस सबको प्रोफेसर तन्मय जी ने हम लोगों के सामने रख दिया। जब हम लोग चर्चा कर रहे थे विश्व आयुर्वेद परिषद के करना क्या, तो उसमें विभिन्न प्रकार के आयोजन, विभिन्न प्रकार के लक्ष्य सामने आए, लेकिन सूत्र एक ही कि हमारा जो पुराना अतीत, गौरवपूर्ण अतीत हमारा रहा है, उसको आयुर्वेद फिर से कैसे स्पर्श करे। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी दिशाओं में काम प्रारंभ किया। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षकों के क्षेत्र में, निर्माताओं के क्षेत्र में, औषधि विक्रेताओं के क्षेत्र में, औषधि उत्पादकों के क्षेत्र में, शोधकर्ताओं के क्षेत्र में, लेखकों के क्षेत्र में, जो जो मिलता गया उन सबको कहते गए कि भाई आप व्यक्तिगत रूप से जो कुछ काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। केवल अपने कार्य के साथ एक शब्द और जोड़ लीजिए कि हम अकेले जो कर रहे हैं वो अकेले नहीं करेंगे, सामूहिक रूप से सामूहिकता का विकास करें। और इसका उदाहरण ही यदि देना हो तो पता नहीं उनमें से कोई उपस्थित है कि नहीं, लेकिन हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बात हो सकती है। जो पांडुलिपि के क्षेत्र में जिनको काम सौंपा है, ऐसे विद्वान श्रेष्ठ कार्यकर्ता है डॉक्टर विद्यानाथ जी, हैदराबाद में प्रोफेसर थे, वहां से चंडीगढ़ आए। बहुत अच्छा है, चक्रपाणी दत्त की टीका का अंग्रेजी अनुवाद 4 वॉल्यूम में किया है, बहुत श्रेष्ठ लेखक है। तो मैंने उनको निवेदन किया कि भाई आपके साथ में जो लोग हैं उन सबको आप काम में उनके साथ सहयोग करते हुए काम में लग सकते हैं क्या। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जम्मू से, वहां जो रघुनाथ मंदिर है, वहां से एक बहुत छोटा सा, एक 2 पृष्ठ का, 2 ताड़पत्रों पे या 2 उस पे लिखा हुआ पांडुलिपि का पत्र लिया और इसमें विजया के कल्प के ऊपर चर्चा है। और उन्होंने अपने बेसिक प्रिंसिपल्स के व्यक्ति हैं, तो बेसिक प्रिंसिपल्स के अपने विभाग के 4 लोगों को इकट्ठा किया, 2-2 सूत्र दे दिए उनको, 3-3 सूत्र दे दिए, और जो इसमें संस्कृत के जो शिक्षक हैं उनको भी कहा कि नहीं इसका कैसे क्या होगा। और पूरे अध्यापकों ने मिलकर के, 4 लोगों ने मिलकर के उनके नेतृत्व में काम प्रारंभ किया। वो पब्लिश हो गया विजय का। फिर दूसरा उससे कुछ बड़ा साहित्य लिया, सन्निपात कलिका करके, वहीं से मिली वो पुस्तिका, उसको भी उन्होंने कहा। और पिछले दिन हम लोगों ने चर्चा की थी, तो हम लोग जैसे आज बैठे हैं वैसे महीने में एक बार हम लोग पांडुलिपि में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ बैठते हैं। उन्होंने कहा लगभग 90% काम प्रारंभ पूरा हो गया है और इसी तकनीक से पूरा हुआ है। उन्होंने क्या किया कि अपने डिपार्टमेंट में सबके पास बैठने के चैम्बर थे, चैम्बर नहीं थे तो एक चैम्बर में 2 जगह हो सकते थे। सबको उन्होंने निवेदन किया, निवेदन से काम चलेगा, यानी जो प्रेशर से नहीं चलेगा कि भाई आप 24 घंटे में से यहाँ जो 6 घंटे 5 घंटे कॉलेज के लिए देते हैं, उसमें से 1 घंटा सब लोग अलग अलग अपने चैम्बर में बैठ के केवल अनुवाद का कार्य उसमें कैसे बढ़ना है, ट्रांसलिट्रेशन होना है, फिर अनुवाद होना है, फिर उसमें संस्कृत के शब्दों का अन्वय करना है, कैसे कैसे करना। तो ऐसे सब लोगों को लोग ने लगाया। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो काम उन्होंने उसमें किया, लेखन में, पांडुलिपि में, वो भी लगभग प्रकाशन की परंपरा में आ रही है। उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमने सभी विषयों के 10-10 लोगों की, 11-11 लोगों की टोली बनाई। उसमें कुछ कन्वीनर, कुछ ऑर्गेनाइजर, फिर उसके बाद में हमने पूरे देश को 6 या 7 खंडों में बांटा, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य और एक सुदूर पूर्वोत्तर, ऐसा करके। और प्रत्येक क्षेत्र से अलग अलग, माने हमारी प्रत्येक समिति में 7 लोग जो हैं वो 7 दिशाओं के हैं। या तो केरल कर्नाटक से कोई होगा, फिर दूसरा आदमी होगा वो बिहार या असम से होगा, फिर तीसरा होगा वो मध्य भारत या उड़ीसा से होगा, फिर चौथा होगा वो जयपुर राजस्थान और मध्य प्रदेश, जयपुर महाराष्ट्र से या गुजरात से होगा। फिर एक होगा वो जो दिल्ली के 4-5 प्रांत हैं, चाहे वो दिल्ली होगा चाहे हरियाणा होगा, और एक होगा वो उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल से होगा।
माने एक बार वो जो 7 लोग बैठेंगे या 10 लोग बैठेंगे, वो पूरे 10 स्थानों के बैठेंगे। तो देश को एक बार एक सूत्र में बांधने का काम ये भी हमने प्रारंभ किया। अभी डॉक्टर साहब ने जो विषय लिया और उन्होंने यहाँ से इतिहास प्रारंभ किया कि पहला कॉलेज केरल में था, दूसरा कॉलेज लाहौर में था। वो लाहौर जिसको लिए शायद अब वहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज भी नहीं होगा। वहाँ के जो पब्लिशर थे, पुराने बहुत पुराने पब्लिशर हमारे पास लाहौर के ही थे, वो सब वहां से शिफ्ट होकर के कहीं गए या समाप्त हो गए। इसके दिशा से यदि हम लोग विचार करें तो जो चरक में पहले अध्याय में एक लगभग 50-52 लोगों की सूची दी है, वो पूरे विश्व के लोग हैं। मैंने आप कल्पना करिए, आज तो कहीं जाना होता है तो मैं कई बार अपने जो सचिव हैं या अध्यक्ष हैं उनको कहता हूँ कि क्या है भाई, दिल्ली में आप हैं, दिल्ली से फ्लाइट लीजिए, 2 घंटे 3 घंटे में सुदूर स्थान पे पहुंच जाएंगे। और बाकी कई स्थान तो ऐसे हैं कि जिनमें आप 15-20 मिनट में, 1 घंटे आधा घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन उस समय में कोई कांकायन वैद्य आए, कोई वाल्मीकि वैद्य आए, कहाँ कहाँ से लोग आए, और वो सब लोग एक स्थान पर इकट्ठे होकर के उनके मन में जिज्ञासा जगी कि भाई हमको आयुर्वेद का चिंतन करना है। इस परंपरा को फिर से प्रारंभ करने का काम ये हम लोगों ने प्रारंभ किया है। और उसी में से ये बात निकली कि भाई ये बात ठीक है कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन हमको जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं उन लोगों के साथ भी तो कभी बैठना चाहिए। तब उसमें से ये कुलगुरु परंपरा प्रारंभ हुई। और उसमें जो एक स्तर है, बहुत से लोग निकलेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर महीने में एक बार बैठेंगे तो 2-3 साल तक तो सब ऐसे ही रहेंगे। कुछ वर्तमान में कुलपति हैं, कुछ पूर्व में कुलपति हैं, कुछ संस्थानों के डायरेक्टर्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो किसी इस प्रकार के पद पे तो शायद नहीं रहे, लेकिन स्तर में हम ही सब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भैया, हम तो उनके मुकाबले में कुछ नहीं है। तो ऐसे सब श्रेष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेकर के उनमें से जो वस्तु विद्यार्थियों के पास पहुंचानी है, जो वस्तु अध्यापकों के पास पहुंचानी है, जो प्रिंसिपल्स के पास पहुंचानी है, और जो शासन के पास पहुंचानी है, ऐसे सभी 4 स्तरों पे उनको सेग्रीगेट करके उन स्थानों पर पहुंचा करके चर्चा की चर्चा करें। शोध कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई कि जब 1100 पेज में तो खाली टाइटल की इंडक्शन हुई है, तो कितना बड़ा काम हो चुका है। लेकिन वो सब काम अभी किसी ने, मैंने भी कुछ किया होगा तो वो लिखा, लिखने के बाद में वो जो उसका एक उपयोग हुआ कि हमारी अध्ययन में जुड़ गई, वो कहीं शायद हमको नौकरी प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग कर लिया। उसमें से जनता के लिए क्या उपयोगी है, ये बात शायद हमने विचार की कि नहीं की, ये अब तक शायद कर नहीं पाए। कोई ऐसा नहीं हमारे मन में कोई खोट था। अब हम लोग सब इस प्रकार से आगे चर्चा करें। हम लोग विचार करते हैं तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो शास्त्रों में एक भी शब्द, संस्कृत के बारे में एक सब लोग जानते हैं, हम लोग विद्वान लोग हैं, संस्कृत के जो विद्वान इकट्ठे होते हैं तो मात्रा का लाभ हो जाए तो मानते हैं कि पुत्रोत्सव का जन्म, पुत्र का जन्म हो गया। मात्रा लाग देना, आधी मात्रा कहीं पे रा पूजा की जगह पे अर्ध रेश लग जाना, विसर्ग का काम लग जाना, एक जरा सा बिंदु लग जाना, तो हमको लगता है, हमारे जो व्याकरण के श्रेष्ठ लोग हैं उनको लगता है कि वाह, इससे ज्यादा और अच्छा क्या हो सकता है। तो एक भी शब्द व्यर्थ का नहीं है, एक भी शब्द झूठ नहीं है, अमृत नहीं है, ये बात मान लीजिए। क्यों? वो रज और तम से मुक्त थे। उनके मन में न तो कहीं इंटरप्रेन्योरशिप की अपनी कल्पना थी, ना उनको लगता था कि मेरी ये किताब पब्लिश हो जाएगी तो मेरी रॉयल्टी मुझे मिल जाएगी। ये भी आवश्यक है, हम उसको पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन ऐसे उसमें विश्वास करके कहीं कमी है तो हम अपने लोग उसमें लगे, ये एक महत्व की बात है। एक बार डॉक्टर साहब ने इंटरमीडिएशन की बात कही। संस्कृत में एक सूक्ति है, हम लोग सब जानते हैं, उद्यमेन सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे। ये जो कार्य हैं ये उद्यम से सिद्ध होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से सिद्ध होते हैं, हमारे परिश्रम से सिद्ध होते हैं, इंथुसियाज्म से सिद्ध होते हैं। केवल विचार करने से नहीं होते। विचार बहुत हुआ विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में, काम की बात है। और उसी श्लोक में आगे कहा, नहीं सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शेर अगर ये सोच ले कि भाई मैं तो शेर हूँ, जंगल का राजा हूँ, मेरे ये तो सबका दायित्व है कि मेरे मुंह में आके और छोटे छोटे जो जानवर हैं वो घुस जाए जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उसको भूख मिटानी है तो खड़ा होना पड़ेगा,
उसको प्रयास करना पड़ेगा। आयुर्वेद के बहुत श्रेष्ठ सिद्धांत हैं, उनको भी आगे बढ़ना, पकड़ना, ये सब कुछ काम करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। अब प्रश्न आता है कि परिश्रम करेगा कौन? सब लोग कहते हैं कि ये सब सरकार का काम है। सरकार का काम नहीं है। ये जो चरक, सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप या जिन लोगों ने भी नालंदा के बारे में जो बताते हैं कि 3.5 लाख उसमें पुस्तकें थी, वो उस जमाने की बात है कि जब पुस्तकें छपती नहीं थी। एक एक पुस्तक एक एक शब्द स्याही से ताड़ पत्र पर या हाथ पर लिखने के बाद में रखी जाती थी, वो सब जला दी गई। उसके बाद भी हम लोगों ने भी जब प्रारंभ किया पांडुलिपियों के काम, तो पूरे देश में लाखों की पांडुलिपियां हैं, लाखों की संख्या में, उसमें हजारों की पांडुलिपियां आयुर्वेद से संबंधित हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा काम है, अपने देश में ही 12-14 भाषाएं हैं, दक्षिण की 5-7 भाषाएं प्रसिद्ध हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब हम लोग सुनना शुरू करते हैं तो जो जनजातियां हैं, जो अन्य क्षेत्र हैं, उनमें जो साहित्य बिखरा हुआ पड़ा है, उन सबको इकट्ठा कौन करेगा? तो हमने प्रयास ये किया है कि सब लोगों को, सब कॉलेजों में सब लोगों को प्रयास करने का प्रयास किया है कि भाई हर कॉलेज से प्रिंसिपल्स की, जो हमने अभी मीटिंग बुलाई, कई बार प्रिंसिपल्स पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आज भी अनेक प्रिंसिपल हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। क्या वो अपने कॉलेज से 2 अध्यापकों को फ्री नहीं कर सकते कि वो जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की आयुर्वेद से संबंधित पांडुलिपियों को इकट्ठा करें? उनको इकट्ठा करने के बाद में उसकी जो भी सुरक्षा संबंधी प्रिजर्वेशन के लिए जो चाहिए, जो सुविधा चाहिए, ये सब हम उन कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को आग्रह करने वाले हैं कि भाई आपका ये इसमें योगदान चाहिए। उसमें सांगठनिक दृष्टि से हमारा जो योगदान चाहिए वो ठीक है, शासन बहुत कर रहा है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब लोगों को, जितने भी आयुर्वेद के लोग हैं, उन सब लोगों को इसमें लगना पड़ेगा। और एक बात और, आयुर्वेद केवल शिक्षण संस्थाओं में नहीं है। हम लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा, उसमें कहा गया लंघनम परम औषधम, लंघन ये श्रेष्ठ औषधि है। उसका इम्प्लीकेशन भी कई बार करते हैं, इसमें चाहिए ज्वर में लंघन करिए, इसमें करिए, इसमें करिए, कहाँ नहीं करिए। लेकिन उसमें भी एक कहावत बनाई गई। एक हम लोग जानते हैं, पुराने लोग नहीं जानते हैं तो जरा, आजकल तो गूगल का और उसका जमाना है, भड्डरी एक हुए हैं और एक ऐसे ही और लोग भी हुए हैं। तो कहावतें जो पुरानी हैं उनमें भी बहुत आयुर्वेद है। एक सूक्ति आयुर्वेद की है, उसमें ज्वर, जुकाम और पाहुनों, ज्वर माने आप समझ गए, जुकाम माने प्रतिशाय, पाहुनों मीन्स अतिथि, कोई मेहमान आ जाए तो इनका क्या उपचार करना चाहिए। तो हास्य रस का भी पुट दिया कि सबको एक उपाय, इनका एक ही इलाज है, क्या कि ज्वर लौट के ना आए, जुकाम दोबारा ना हो, और जो अतिथि आ गया है उससे हम बड़े परेशान हो गए हैं, वो लौट के ना आए। तो लंघन दे दो तान के, इन तीनों को, अतिथि जो आया है अगर हम उसकी सेवा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको उसको फिट नहीं पाते तो उसको 2 दिन कहो कि ठीक है भाई, आज तो हमारे यहाँ एकादशी का व्रत है, कल दूसरा व्रत आ जाएगा, भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब चीजें भोजन से बढ़ने वाली है। मंदाग्नि जो है ज्वर में भी होती है, प्रतिशाय में भी होती है। तो ये भोजन कम करना, तो ये जो ज्वर का लक्षण दिया लंघनम परमौषधम, इसको कैसे करके ये एक सूक्ति में मान दिया, ज्वर जुकाम हो पावनो सबको एक उपाय, लंघन दे जो तान के लौट फेर ना आए। तो ये मैंने इसलिए चर्चा की कि ये भी करना पड़ेगा कि जो खाली वो नहीं करना, अपने अपने स्थान पर जो विभिन्न भाषाएं हैं उनमें जो सूक्तियां हैं, उनमें जो मुहावरे हैं, उन सबको एकत्रित करके, आयुर्वेद सर्वत्र विद्यमान है और आयुर्वेद सबके लिए है। वो सदा भी है, सर्वदा भी है, सदैव विद्यमान रहने वाला भी है, और इट इज फॉर ऑल द पर्सन्स। तो इन पूरी परिस्थितियों को फिर से सेटअप करने का काम ये विश्व आयुर्वेद परिषद ने, विश्व आयुर्वेद परिषद कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, विश्व आयुर्वेद परिषद सामान्य लोगों द्वारा, सामान्य कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई हुई एक विचार है। लेकिन उसमें हम सब लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, और जो जो जुड़ता जा रहा है वो ये कहता जा रहा है कि नहीं आप ठीक काम कर रहे हैं, जोड़ते चलिए। तो इसमें प्रश्न यही है कि हु विल डू, करेगा कौन? तो वी ऑल विल डू। हम ये नहीं कहते कि आप करेंगे या सरकार करेगी,
हम भी उसमें शामिल हैं, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, शासन भी करेगा। ऐसे सब लोग अगर सामूहिक रूप से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमको लाभ भी होगा। अब मैं ये कहता हूँ, कई बार लोगों के साथ बैठता हूँ तो आयुर्वेद के लोगों को कहता हूँ कि आप अपना कोई काम बंद मत करिए, प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस करिए, औषध निर्माण करते हो तो निर्माण करिए, लेकिन ये सबको सामूहिकता का भाव एक बढ़ेगा तो यही संगठन है। संगठन के लिए कोई काम अपना छोड़ के काम नहीं करना। हम लोगों ने भी, कुछ लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने शुरू किया है, एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। हर कॉलेज में कक्षा 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल के 10-10 विद्यार्थियों को, जो अच्छी विद्यार्थी हैं, कोई अच्छे के मेजरमेंट ऐसा नहीं है, जो समय दे सकते हैं, जो पढ़ने में जिनकी अभिरुचि है, उनको एकत्रित करके एक सुपर 30 का ग्रुप बनाना, कॉलेज कैंपस के बाहर कहीं उनको महीने में एक बार, जैसे हम लोग बैठे हैं ऐसे ही मिलने के लिए बुलाना, और एक विद्वान व्यक्ति के माध्यम से उनको 1.5-2 घंटे का मार्गदर्शन देना। भोपाल में शुरू हो गया, मेरठ में शुरू हो गया, जबलपुर में होने वाला है। मैंने ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं कर रहा हूँ, काम प्रारंभ हो गए हैं, उनकी चर्चा करता हूँ। तो निश्चित रूप से यदि हमारे कॉलेज में, पूरे देश में 500 के लगभग कॉलेज हैं, अगर ये 500 में सब जगह ये सुपर 30 की योजना को स्वीकार कर लिया तो 500 × 30, इतने लोग हमारे यहाँ ऐसे निकल के आने वाले हैं कि जिनकी हमने आदत डाल दी कि आपको पढ़ना है, आयुर्वेद के लिए काम करना है। तो ये जो 30 है वो 30 पे नहीं रुकेंगे, वो 30 तो 300 होने ही वाले हैं। जिस कॉलेज में 30 का सुपर 30 ग्रुप बनेगा तो बाकी जो कॉलेज के रहे हुए विद्यार्थी हैं 250 होंगे, 300 होंगे, तो उन सब में एक अच्छे संस्कार, जैसे खराब चीजों के संस्कार फैलते हैं, संक्रमण फैलता है, वैसे जो सुगंध होती है वो भी फैलती है। तो ऐसे सुगंध को फैलाने का ये जो काम है, ये हम सब लोगों ने प्रारंभ किया है। और अंत में ये जो पढ़ाई लिखाई है, जिसके लिए कुलगुरुओं के लिए हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ की, वास्तव में पढ़ाई का लक्ष्य क्या, नौकरी प्राप्त करना है क्या? आजकल पॉलिटिकली सब लोग कहते हैं कि इंटर में कर लिया, BA कर लिया, नौकरी चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विद्या का लक्ष्य निश्चित रूप से विनय है, और विनयाद याति पात्रता, विनय जब आएगी तो आपकी पात्रता, आपकी क्षमता बढ़ेगी। पात्रत्वा धनम आपनोति, क्षमता बढ़ेगी तो फिर आपके पास निश्चित रूप से साधन आएंगे, समाज देने वाला है आपको। धनात् धर्मः तथा सुखम, और वो जो आयुर्वेद में प्रारंभ में कहा कि भाई हमारा लक्ष्य तो सुखायु को प्राप्त करना है, हितायु को प्राप्त करना है, तो सुखायु और हितायु के लिए जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर से प्राप्त होगा। ये बात अगर स्मरण में रहेगी तो मैं समझता हूँ कि इतने श्रेष्ठ मार्गदर्शन के बाद में जो मैं कह रहा हूँ उसकी कोई बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं रही होगी। फिर भी आयुर्वेद परिषद का जो पक्ष है वो रखने के लिए मुझे निर्देश दिए गए अधिकारियों ने, तो मैंने लिखने का प्रयास, देने का प्रयास किया है। सभी को, जिन लोगों ने ये आज के समय में समय दिया और सुना, उनके लिए सादर अभिनंदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पुनः पुनः सभी का अभिनंदन। Thank you so much, sir, for your profound insight and the wisdom that you have shared during your address. We truly admire the wisdom that you have imparted, and your contribution to this event have been really so much valuable. Now moving ahead, to acknowledge the presence of each and every participant on the behalf of Vishwa Aयुर्वेद Parishad, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed speaker, participants, and attendees for making this webinar a resounding success. Our special thanks to our distinguished guest speaker, most visionary leader, Professor Abhimanyu sir, for sharing his expertise and knowledge, enlightening us all today thoroughly. We are also inclined with the fact that you have been with us right from the very first minute of this webinar, and still giving your super precious time to this session. Your passion and dedication and hard work to your field have motivated too many leaps and bounds. So much gratitude and boundless thanks to Abhimanyu sir for accepting our request and for enlightening us through your deliberation.
I would also like to express our appreciation to the senior executive committee members of Vishwavidya Parishad, Professor Yogesh Chandra Mishra sir as organizing secretary of Vishwavidya Parishad, Professor Govind Shukla sir, president of Vishwavidya Parishad, and Professor Mahesh Vyas sir as general secretary of Vishwavidya Parishad. I would also like to thank with deepest core of our heart to Professor P.K. Prajapati sir, Honorable Vice Chancellor of Dr. S.R. Rajasthan Ayurveda University, Jodhpur, Professor Abhijit H. Joshi sir, Honorable Vice Chancellor of Desh Bhagat University, Punjab, and Professor Sanjeev Oja sir, former Vice Chancellor of Gujarat Ayurveda University. These are the advisors of Kulguru Sambhasha. Equal thanks to Dr. Tanmay Goswami sir, former Vice Chancellor, Sanskrit University, Uttar Pradesh. Professor Baldev Dhiman sir, former Vice Chancellor of Sri Krishna Ayush University, Haryana, and Dr. Nidhi Sharma, ma'am, faculty of All India Institute of Ayurveda, New Delhi, as our chief organizers. I would also like to acknowledge to Deepa Mishra ma'am from BHU and Gayatri Deshpande ma'am from Sholapur as our today's program coordinators. Equal thanks to Professor Suhag Raval sir, Shiva Kumar Harti sir, Bhuvnesh Kumar Sharma sir, Sheetal Rasane ma'am, Pooja Sabarwal ma'am, Vijaya PS ma'am, and Priya Nayak ma'am as our today's program coordinators. Lastly, thanks to each and every one of you for being a part of this session. Your presence has made this Sambhasha truly memorable and enriching event. We hope you all have found this session quite enriching. Thanks to all for your patience listening. So with this, I would like to take your leave with a hope for such participation in our upcoming enriching sessions in future as well. Wishing you all a very good day. Thank you once again. Thank you. Thank you so much, sir. Okay. थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार। ठीक है।